السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 22 سورۃ یاسین۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی شیئر دا اسکرین۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ یاسین، مکی سورہ ہے۔ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن، اس قرآن کی قسم جو بڑا حکمت والا ہے، اور بے شک آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کس پر ہے؟ علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے سچے راستے پر ہو، آپ کا راستہ بالکل غلط نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن میں کوئی نہ رہے۔ آیت 5، تنزیل العزیز الرحیم، اللہ کی طرف سے۔ Baji, no sound. You cannot hear me? Now I can, Baji. When you were giving the meaning of Tanzilal, it Okay. vanished. ابھی ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ تنزیلہ، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب قرآن، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسا ہے؟ العزیز الرحیم، زبردست، آلمائٹی، دی موسٹ مرسیفل، بار بار نہایت رحم کرنے والا۔ وہ اللہ، اس نے ہم پر اپنی کتاب قرآن نازل کی۔ کس پر نازل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیا دکھاتی ہے یہ کتاب؟ یہ دکھاتی ہے ہمیں سیدھا راستہ،
मजबूत रास्ता, द गाइडेंस। क्यों नाजिल की अल्लाह ने, ये बता दिया आयत 6 में। लितुंज़िर, ताकि आप ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खबरदार करे, वार्निंग दे दे उस कौम को जिनके पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था उनके बाप दादा के पास, और इसीलिए वो सब गाफिलून में से थे, वो सब गाफिल थे। तो अल्लाह ने कुरान को गफलत दूर करने का बेस्ट जरिया बनाया। गफलत किसे कहते हैं और खबरदार किसे कहते हैं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा गफलत में है और वो गलत काम कर रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो गलत है। छोटे बच्चे जब अपने स्कूल में अपने क्लासमेट का अगर उन्हें इरेजर अच्छा लग गया, कंपास बॉक्स अच्छा लग गया, तो बच्चे वो अपने साथ अपने बैग में डाल कर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा और उनके पास ऐसा नहीं है तो बच्चा ले आया अपने साथ। लेकिन माँ को तो पता है कि ये चोरी है, दिस इज थेफ्ट, और अगर आज इसे नहीं रोका गया तो फिर इसे तो चोरी की आदत पड़ जाएगी और इसे नहीं पता है कि ये चोरी। वो तो समझ रहा है बच्चा कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज, मैंने उसकी लेके आ गया। लेकिन माँ फिर उसकी गफलत को दूर करती है, उसे जगाती है, उसे बताती है और बताना चाहिए कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। दूसरा एग्जाम्पल, कि अगर अल्लाह ना करे आपकी बिल्डिंग में आग लग जाए, हाँ, और आपके बच्चे आपके फैमिली मेंबर्स सोए हुए हैं, तो आप क्या करोगे? सोचोगे कि ये सो रहे, सोने दो, आराम कर रहे। आग लगी हुई है, आप उनको कैसे उठाओगे? बताओ, कैसे जगाओगे? वो गफलत की नींद सोए हैं, उनको पता नहीं है कि आग लगी हुई है, देयर इज फायर इन योर बिल्डिंग, सो व्हाट विल यू डू? टेल मी सना। Baji, I will just rush and wake them up anyhow. If I have to slap them, I have to whatever I can do to wake them up and just pull them out of bed and just run from the building. Allah na kare. Exactly. तो उनको जगाएंगे, you will slap, you will drag, you will wake them up, और you will shout on top of roof. इतना जोर से अगर आपको चिल्लाना पड़े, डांटना पड़े, आप उनको जगाओगे, उठाओगे, भगाओगे, निकालोगे उस बिल्डिंग से, क्योंकि आग लगी हुई। तो ये दुनिया की आग तो हमें नजर आती है ना, लेकिन वो कयामत के दिन और वो जहन्नम की आग हमें नजर नहीं आती है। उसे कौन देख कर आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात में दिखाई गई जहन्नम की आग, इट इज ऑलरेडी देयर, और जन्नत भी दिखाई गई। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपनी जगह पर रख कर देखो कि जैसे आपके बिल्डिंग में आग लगी है, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग देख कर आए हैं और वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो वो आकर किस तरह लोगों को जगाएंगे, उनको अपनी गफलत की नींद से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? कि भाई आग ऑलरेडी लगी हुई है, तुम ये कहाँ जा रहे हो, ये कौन से गलत कामों में पड़े हो, शिर्क, कुफ्र, अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह। तो अच्छा, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे बाप दादा भी तो यही करते आए हैं, वो भी इसी दीन पर थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके बाप दादा के पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था, तो वो गफलत में पड़े थे। लेकिन तुम्हारे पास तो आ गया है ना, तुम्हारे पास तो अब कुरान भी आ चुका है, जूम है, हर रोज तुम कुरान सीख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी बाप दादा की रस्म और रिवाज, उनके गलत अकीदों को नहीं छोड़ोगे। तो कुरान भी बार बार रिमाइंडर देता है। इसमें भी अभी अभी हमने सूरे सजदा में भी जहन्नम का जिक्र पढ़े, कल हमने सूरे गाशिया पढ़े, उसमें भी हमने देखे कि कैसे खबरदार करना है और लोगों को जगाना है, इंशाल्लाह गफलत से दूर करना है।
देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी आए थे प्रीवियस टू हिम? सुरैया? ईसा अलैहि ईसा ईसा अलैहि अलैहिस्सलाम, है ना? और ईसा अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और कोई नबी नहीं आए। आपको पता है ये गैप कितने सालों का था? इट वाज ऑलमोस्ट 600 इयर्स, ऑलमोस्ट 600 इयर्स। तो बाकी के लोग फिर धीरे 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 उनके टीचिंग्स को भूल गए और वो गफलत में पड़ गए। लेकिन अब आ गए रसूल, तो क्या अभी भी तुम ऐसे ही? अच्छा, ये जो नींद होती है ना, नींद, ये नींद भी तो लोगों को कितनी प्यारी है ना? और हम लोग समझते हैं कि बाबा सोएंगे नहीं 8-10 घंटे 12 घंटे तो कैसे चलेगा, रात में भी सोते दिन में भी सोते। तो ये भी एक तरह की गफलत है। जब हम सोए हुए रहते हैं तो क्या हम किसी काम के होते हैं? क्या हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी काम कर रही होती है सुरैया? नहीं बाजी। हाँ, तो ये नींद भी एक बहुत बड़ी गफलत है। आज मैंने ग्रुप में आप लोगों के लिए एक किताब का फोटो डाला था, तिब्बे नबवी, है ना? तो डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा भी इस किताब को पढ़ती है, पढ़ाती है, और उस किताब में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बट जिंदगी बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का उसमें बहुत सी हदीस और सुन्नतों के जरिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। इट इज ऑल्सो हीलिंग थ्रू कुरान, हीलिंग थ्रू हदीस। वो किताब आप लोग जरूर पढ़ें। मैंने भी ऑर्डर की है, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी तो पढ़ेंगे और उसमें से आपके साथ भी शेयर करूंगी। ओके, अब अल्लाह हम सबको इस गफलत से जगाए, उठाए और दूसरों को भी जगाने वाला बनाए। ओके, इंशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं, आयत 7। लक़द, अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द, बेशक, इंडीड, इट हैज बीन वेरीफाइड, क्या? हक़्क़ल क़ौलु, हक हो गया कौल, हक हो जाना यानी क्या? सच हो गई, कौल यानी बात, बेशक सच हो गई बात। किसकी बात? अल्लाह की बात, यानी अल्लाह का फैसला अल्लाह ने ऑलरेडी कर चुका है। और सच हो गया का मतलब अब क्या हो गया, उसको अल्लाह ने पूरा भी कर दिया। कौन सा फैसला अल्लाह ने पूरा कर दिया और किस पर? देखते हैं, अला अक्सरिहिम, ऊपर अक्सरियत के, उनमें से, यानी अपॉन मेजॉरिटी ऑफ देम, अल्लाह का फैसला पूरा हो चुका, यानी अल्लाह ने अपना ऑर्डर पास कर दिया है मेजॉरिटी लोगों पर। फहुम, फिर वो, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते। ये कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का फैसला अल्लाह ने ऑलरेडी क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। ये वही लोग जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया। मक्के के मुशरिकों की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने उनको, उनके बीच रसूल भेजे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, कुरान के जरिए उन्होंने खबरदार किया। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं, कबूल करने को तैयार नहीं, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं, वो ईमान लाने को ही तैयार नहीं। कौन? मेजॉरिटी ऑफ देम, अक्सरियत उनमें से। तो फिर अल्लाह का फैसला उनके लिए क्या है जो अल्लाह ने उन पर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। वो क्या है अल्लाह का फैसला? वो हम देखते हैं। और ये मेजॉरिटी कौन है? आज भी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग दुनिया के, हमारी सोसाइटी के, वो ईमान नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्या हम लोग क्या देखते हैं? जब भी हमको, देखिए कुरान और इस्लाम क्या है मुझे बताओ, मेरे पीछे रिपीट करना सना, कि इस्लाम कोई मजहब नहीं। बोलिए, इस्लाम कोई इस्लाम मजहब नहीं कोई है, मजहब नहीं है जी बाजी, बल्कि वो जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। बल्कि वो जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। That means it is a
लाइफस्टाइल, आइडियल लाइफस्टाइल जो हमें गुजारनी है, अल्लाह ने सिखा दिया है. ओके, जी बाजी. यस. तो अभी क्या है, मेजॉरिटी लोग इसको फॉलो करते हैं क्या सना दुनिया में? नहीं बाजी. तो मेजॉरिटी लोग किसको फॉलो कर रहे हैं दुनिया में आज? अपनी बाप दादा से डिजायर्स related. को. जी बाबी. हाँ, या तो बाप दादा के दीन को फॉलो करते हैं जब मजहब की बात आती है, और जब दुनियादारी की बात आती है, फैशन की बात आती है, तब क्या अपने दादी के जैसा ड्रेस पहनते हैं? नहीं बाजी. नहीं. फिर तो हम किसको फॉलो करते हैं? फैशन, ट्रेंड्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉडल्स. तो हम किसको फॉलो करते हैं? हम लोगों को फॉलो करते हैं, मेन स्ट्रीम को फॉलो करते हैं. मेजॉरिटी इसी गफलत में पड़ी हुई है, और इसका अंजाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हिसाब किताब होगा कयामत के दिन, हदीस का मफहूम है, तो हर हजार लोगों में से, यानी आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल 999 will go to hellfire. ये मेजॉरिटी को फॉलो करने का नतीजा देखिए कि हर 1000 लोग में से 999 जहन्नम में जाएंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग देयर डिजायर्स. उनका तरीका फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह का तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो सब जहन्नम में जाएंगे. उनके पीछे पीछे सारे फॉलोवर्स जो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं जैसी जिंदगी गुजारते हैं, वो कहाँ जाएंगे और कितने जाएंगे? सुरैया बताओ, हर 1000 में से कितने जाएंगे? 999 बाजी. तो बचेगा कितना? एक बचेगा बाजी. 1000 में से एक जन्नत में जाएगा सिर्फ. डर लगा या नहीं लगा? खौफ आया या नहीं आया सुरैया? जी बाजी, बहुत खौफ है. तो ये अक्सरिहिम बार बार आता है ना, अक्सरिहिम ला युमिनून, अक्सरिहिम ला तुशकरून, वो शुक्र अदा नहीं करते. मेजॉरिटी ईमान नहीं लाते. अल्लाहु अकबर. अभी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इनके लिए क्या बात हक हो गई, क्या फैसला अल्लाह ने किया है? जानना चाहते तो जरा जानिए. आयत 8 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्ना, बेशक हम, जअलना, बना, डाल दिए हमने, बना दिए हमने. क्या बना दिए हमने? फी अनाकिहिम, उनकी गर्दनों में. क्या डाल दिया हमने उनकी गर्दनों में? इन देयर नेक्स, अराउंड देयर नेक्स. क्या डाले उनकी गर्दनों के इर्द गिर्द? अगलालन, तौक. तौक कहते हैं शैकल्स, बेड़ियां, चेन्स, फांसी का फंदा. हमने उनकी गर्दनों में क्या डाल दिया? फंदा डाल दिया, तौक डाल दिया, और उनको जकड़ लिया. अब ये गर्दनों में तौक डालने को कहते हैं कि हाथ, पहले हाथों को बांधा जाता है उन चेन्स में, और फिर हाथों के साथ गर्दन में डाल दिया जाता है वो फंदा. यानी हाथ भी कहाँ बंधे हुए हैं? गर्दन के पास. किस में बंधे हुए हैं? तौक में, चेन्स में, सकलियों में. फहिया, फिर वो, इलल अज़कानी, फिर वो अपनी ठुडियों तक है. ठुडिया किसे कहते हैं? द चिन. ये जो आपके चीक्स के नीचे चिन होता है, इसको ठुडी के अलावा और क्या कहते हैं उर्दू हिंदी में? बताओ, पता है किसी को? चिन, चिन समझते हैं आप लोग? एनीबडी? सलमा? बाजी. क्या सुरैया? दाढ़ी. दाढ़ी. हाँ, दाढ़ी बाजी. दाढ़ी. दाढ़ी, करेक्ट करेक्ट. तो दाढ़ी या ठोड़ी या चिन
यहाँ तक के वो गर्दन में ऐसे तोक पहनाया होगा कि वो उनके चिन तक इतना चौड़ा होगा. सुरैया, if you can find a picture and place it. फहुआ मुकमहून, फिर वो अकड़, उनकी गर्दनें अकड़ जाने वाली होगी, उनकी गर्दनें अकड़ जाएगी और गर्दन ऐसी ऊपर के ऊपर रह जाएगी. अगर आपने कभी वो बेल्ट पहना हो स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, गर्दन में नेक में पहनते हैं ना एक बेल्ट टू सपोर्ट योर स्पाइन एंड योर नेक बोन्स, तो कैसे होता है, आपकी गर्दन ऊपर रह जाती है क्योंकि इतना ब्रॉड बेल्ट होता है, isn't it? तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग इतना अकड़ते थे ना दुनिया में, इतना गुरूर और घमंड था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी, ईमान नहीं लाए, तो कयामत के दिन उनको ऐसी गर्दनों में तोक पहनाई जाएगी, ऐसी बेड़ियां होंगी गर्दनों में कि उनकी गर्दन और उनका सर ऐसे अकड़ जाएगा, ऊपर के ऊपर रह जाएगा. ये उनके अकड़ और उनके तकब्बुर का रिजल्ट था. अब देखिए इसका अंजाम अल्लाह ताला क्या करते हैं कयामत के दिन, ये हाल होगा उनका. अस्तगफिरुल्लाह. हमारे यहाँ जब कोई मुजरिम या क्रिमिनल इज अरेस्टेड तो उसके हाथों में बेड़ी पहनाई जाती है ना, और फिर उसे बेड़िया पहनाकर जेल में डाल दिया जाता है, हाथ बांध दिए जाते हैं. लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ हाथ नहीं, इनकी तो गर्दनों में, क्योंकि ये जो गर्दन और सर जैसे अकड़ता था. यस, बाजी ये देखिए, picture. द पिक्चर इज गुड. और ये जो गले में है ना, इससे भी चौड़ा अगर हो, वेरी ब्रॉड, तो फिर चिन कैसा रहेगा और ऊपर तक रहेगा. इफ यू कैन गेट दैट ऑल्सो सुरैया, जज़ाकल्लाहु खैरा, तो आप वो लगा देना. तो जो दुनिया में अकड़ते थे, ईमान नहीं लाते थे, कयामत के दिन उनको अल्लाह ताला ऐसी गर्दनों में उनके तौक पहना देंगे. अस्तगफिरुल्लाह. और क्या करेंगे, ये तो होगा कयामत के दिन. दुनिया में अल्लाह ताला क्या करते हैं पता है? आयत 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काइंडली शेयर द स्क्रीन. वजअलना, और बनाई हमने, मिन बैनी ऐदिहिम, और बनाई हमने उनके आगे, उनके हाथों के आगे. ऐदी कहते हाथों को, हिम यानी उनके, उनके हाथों के आगे यानी क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने क्या खड़ी कर दी हमने, सद्दन, एक दीवार, सद्दों, एक दीवार, बैरियर. वमिन खल्फिहिम, और उनके पीछे भी खड़ी कर दी हमने सद्दन, एक दीवार. दीवार का मतलब क्या होता है कि बस ब्लॉक्ड है, इसके आगे आप नहीं जा सकते. तो आगे भी एक दीवार, पीछे भी एक दीवार. इसका मतलब यू कैन नॉट गो अहेड और बिहाइंड. अभी आप फंस गए हो यहाँ पर. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में क्योंकि ये लोग इतना अकड़ते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते, तो इनके लिए दुनिया में आगे भी दीवार, पीछे भी दीवार. फअगशयनाहुम, फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें गशी वर्ड है. कल ही सूरह गाशिया हमने पढ़े. गाशिया का मतलब क्या होता है, ढांपना, कवर कर देना. फिर ढांप दिया हमने उनको, कवर कर दिया हमने उनको. फहुम, फिर वो सब, ला युबसिरून, नहीं वो देख सकते, नहीं वो देखते. तो अल्लाह ताला हर एक को एक मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी अपनी गफलत से दूर निकलकर इस्लाम कबूल कर ले. लेकिन जब वो इतने जिद में आते हैं, तकब्बुर में आते हैं और नहीं मानते, तो एक लिमिट के बाद अल्लाह ताला अब उनको कोई मौका नहीं देते. दैट वाज अ फाइनल लिमिट. इसके बाद अल्लाह ताला उनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर देते हैं. दैट मीन्स दे आर ब्लाइंडेड विथ देयर ओन डिजायर्स. जैसे वो मेंढक होता है कुएं में, वो वहां पर खुश है अपनी दुनिया में, अपनी ही बढ़ाई में. दे आर कंटेंट इन देयर ओन लाइफ. और उसी गफलत को वो समझते हैं
کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا گھر ہے اور اس گھر میں آپ کے لیے ہر عیش و آرام ہے, آرام کے صوفے, اے سی ہے, ہر کمفرٹ, میڈز, تو ابھی ایسی بارش میں باہر کیچڑ ہے, کیا آپ میں سے کوئی اگر آپ کے گھر میں ساری لگژری اور کمفرٹ ہے تو کیا آپ چوز کرو گے کہ آپ گھر سے باہر نکلو بھی؟ ول یو چوز ٹو گو آؤٹ آف یور ہاؤس؟ No, Baji. نہیں. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر آپ کے گھر میں ابھی کھانے کو نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو پھر کیا کرے گا انسان؟ اب اس کی ضرورت ہے نا, وہ نکلے گا باہر, اس کو اتنے بارش اور کیچڑ میں بھی وہ جائے گا, محنت کرے گا, کمائے گا اور کچھ لے آئے گا. isn't it؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اس دین اسلام کو سیکھے, سمجھے, اس سے فائدہ اٹھائے. وہ اپنے باپ دادا کے دین میں اتنے کنٹینٹ اور سیٹسفائیڈ تھے, تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم وہیں رہو, اب آگے بھی اور پیچھے بھی کہیں تم مڑ نہیں سکتے, اپنی ہی دنیا میں مست رہو. اور اوپر سے ان کو کور بھی کر دیا. اب ان کو لا یبصرون, اب نہیں وہ دیکھتے. کیا نہیں دیکھتے بتاؤ؟ کیا نظر نہیں آتا اب ان کو؟ لکھ لیجئے, لا یبصرون, ان کو حق نظر نہیں آتا, اسلام نظر نہیں آتا, اسلام کی سچائی, اسلام کی فطرت. اسلام کتنا فطری دین ہے, آپ بتاؤ, جھوٹ مت بولو. یہ کیا آپ کی مورل سائنس کی بک میں نہیں لکھا ہے؟ چوری مت کرو, یہ نہیں لکھا ہے مورل سائنس کی بک میں. آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ بتاؤ. صحیح بات ہے باجی. یس, کسی کا قتل کرنا, کسی کا مال لوٹنا, کسی کی عزت اچھالنا, کسی کو انسلٹ کرنا, یہ سب غلط باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ جی باجی, بہت غلط. تو قرآن وہی تو سب کچھ بتا رہا ہے ہم کو. تو قرآن نے ہم کو آ کر اچھی بات بتائی, اچھا راستہ دکھایا, لیکن اگر تم اس صحیح راستے کو دیکھنا نہیں چاہتے, دیٹ مینس تم سچائی سے منہ موڑ رہے ہو, تمہیں سچائی دیکھنی ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں دکھائے گا. لا یبصرون, نہیں دیکھ سکو گے. اب رہو اپنے ہی دنیا میں مگن. اللہ اکبر. کیا آج آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ کیسے ہم لوگ بلائنڈڈ ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں؟ کہاں بلائنڈڈ ہو گئے ہم لوگ؟ یہ جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے, پورا دن آپ ٹی وی پر دیکھو, جو بھی وہ دکھاتے وہ آپ دیکھتے ہو, برابر. آپ سمجھتے ہو ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, برابر. ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, میری جو مرضی ہے میں وہ دیکھوں, لیکن ایکچوئل ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں. وہ جو دکھاتے ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہو, چاہے وہ نیوز ہو یا کوئی انٹرٹینمنٹ ہو یا کوئی ایڈوکیشنل پروگرام. اٹس ناٹ یور چوائس, اٹس دیئر چوائس. تو پھر کیا دیکھ رہے ہم؟ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں, اور جو اللہ دکھانا چاہتا ہے اس سے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کہتے کہ کیا وہی پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو مما, روز وہی قرآن کی آیتیں, روز حدیث, ایک ہی بات کرتی رہتی ہو تم. اچھا موبائل, ہم سمجھتے میرا موبائل, اس میں جو دیکھنا چاہوں وہ دیکھو. ایسا کہاں ہے؟ فیس بک پہ آپ وہ نہیں دیکھتے ہو جو آپ کو دیکھنا ہے, انسٹاگرام پہ آپ وہ دیکھتے ہو جو ریلز آپ کو کوئی پوسٹ کرتا ہے, گوگل پہ بھی آپ سرچ کرتے ہو جو آپ کو چاہیے, لیکن اس میں بیچ بیچ میں کتنی ایڈز اور کتنے ان پٹس آتے رہتے ہیں, پھر وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر جاتے. Isn't it? Am I right or wrong, Sana? You are right باجی. تو پھر Misguiding. کمپلیٹ مس گائیڈنس ہے, اور کتنا کنفیوژن ہے, اور اللہ کی کتاب میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور ہم لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں پھر؟ ان ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں. اچھا بھلا ایک مسلمان کتنے جلدی بھی وہ بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ چلو
बहुत अच्छा कॉज है ना, किसी की मदद ही तो कर रहे हैं, फिर खड़े हो जाते हैं स्टेज पर, फिर वो लोग कहते हैं कि आपको है ना ऐसे कपड़े नहीं ऐसे कपड़े पहन कर आना है, तो आप किसकी बात मानते हो? उनकी बात मानते हो। क्यों? क्योंकि आपको बना दिया है गेस्ट ऑफ ऑनर। फिर आप उन जैसे वो बताते हैं वैसे कपड़े पहनते हो, फिर वो आपको जैसे कहते हैं कि आपको ये स्पीच देनी होगी तो आप वैसे ही बोलते हो। कल आपको अगर इनवाइट किया जाए ऑन टेलीविजन कि आपको कुछ वहां पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाओगे, आपको पता है कि दे विल गिव यू अ स्क्रिप्ट टू टॉक, कि आपको ये कहना है इधर आकर, तो ही आप बोल सकते हो। सो फिर हम लोग समझते हैं कि चलो हमको एक मौका मिल रहा है तो हम जाते हैं, और फिर हम वही कहते हैं जो वो कहलवाना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? लोगों के हाथों में दे दिया। उससे बेटर है ना कि हम अपना रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में दे दें, जो वो कहता है वो सच है, उसी को फॉलो करें ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते, और उससे पहले ये भी कि अगर हम कुछ सच में हमें गफलत से निकलना है तो अपनी आंखें खोलनी होगी और मेहनत करके रास्ता तलाश करना होगा। Isn't it? आपको पता है कुरान में किसका जिक्र आता है कि उन्होंने खूब तलाश किए तब उनको अल्लाह मिला? कौन थे वो? तब उनको गाइडेंस मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहाँ ढूंढा अल्लाह को? पता है अपने रब को कहाँ ढूंढा उन्होंने? कायनात में ढूंढा, नेचर में ढूंढा। क्या सूरज मेरा रब है? क्या चांद मेरा रब है? क्या ये आसमान मेरा रब है? क्या ये आग मेरा रब है? तो उन्होंने तलाश किया, तो फिर अल्लाह ने उनको हिदायत दी, गाइड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक इन द नेचर। पहले सबसे पहले कहाँ ढूंढना है? हक को, सच्चाई को आप देखिए कायनात में, इन द नेचर। नंबर 2, लुक इट इन योर सेल्फ। अपनी बॉडी, अपने आप में तलाश करो कि इससे बड़ा मौजज़ा क्या है कि ये मेरी बॉडी जीती जागती, तो ये किसने बनाई, कहाँ से आई, कौन इसको चला रहा है? अंदर अंदर तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है मेरे पास। हार्ट भी चल रहा है, ब्रेन भी चल रहा है, कान भी चल रहे हैं, आंखें भी चल रहे हैं, कहीं वायर भी नहीं लगी हुई है। आप मुझे बताओ, आपका मिक्सर चलाने के लिए डू यू हैव टू वायर इट टू इलेक्ट्रिसिटी? सना, जी बाजी। अभी इतनी बड़ी बॉडी जो मेरी चल रही है, अंदर मिक्सर भी तो है, ये किधर वायर लगाया मैंने? कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी? कौन चला रहा है? टेल मी। पता नहीं बाजी, बिकॉज देयर इज नो, ओनली अल्लाह के इससे रहम से चल रहे हैं हम। एग्जैक्टली तो ये कहाँ है गौर और फिक्र? Isn't it? So second is look into your body yourself. Number 3, कुरान पढ़िए आप। अब आप अल्लाह की किताब में देखिए, तब आपको अल्लाह ताला हिदायत देगा। एक कदम बढ़ा के तो देखो, देखो कैसे अल्लाह आपको हिदायत देगा। बहुत प्यारी प्यारी हदीस है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। हाँ, देखिए सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तो फिर वो हदीस कौन सी हो गई? हदीस कुदसी। यस, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ए मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है और तुम पर भी हराम किया है, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। मैं तुम पर जुल्म नहीं करता, तुम भी दूसरों पर जुल्म मत करो। फिर क्या फरमाया, देखिए कितनी अच्छी अच्छी अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। सेकंड, ए मेरे बंदो, ये अंदाज देखिए अल्लाह का, ए मेरे बंदो, हम गुनहगार, हम खताकार, लेकिन अल्लाह ताला हमें क्या फरमाते, ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, यू आर ऑल मिसगाइडेड,
मगर जिसको मैं हिदायत का रास्ता बतलाऊं तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुमको हिदायत का रास्ता बताऊंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से हिदायत मांगनी है, क्योंकि हम सब गुमराह है, हम सब भटके हुए। हर रोज हिदायत मांगनी है अल्लाह से, तभी अल्लाह हिदायत देगा, वरना नहीं देगा। यू नीड टू आस्क एंड स्ट्राइव। उसके आगे क्या फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो, मगर जिसको मैं खिलाऊं तो मुझसे खाना मांगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। तो कौन देता है हमको खाना? वो भी तो अल्लाह ही देता है, तो अल्लाह से मांगो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो, मगर जिसको मैं पहनाऊं तो मुझसे कपड़ा मांगो, मैं तुमको पहनाऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं ही सब गुनाहों को बख्शता हूं, तो मुझसे बख्शिश चाहो, मैं तुमको बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। दिन रात गुनाह करते हैं ना हम, तो बख्शिश तो मांगनी पड़ेगी, और अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि वो माफ कर देगा, फिर हम क्यों नहीं मांगते? अब आगे जो आ रहा है वो देखिए, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले और पिछले और आदमी और जिन्नात सब ऐसे हो जाए जैसे तुम में का बड़ा परहेजगार, यानी हर एक परहेजगार हो जाए, तो मेरी सल्तनत में कुछ भी बढ़ोतरी ना होगी। देयर विल बी नो एडिशन टू दैट। और तुम में अगले और पिछले आदमी और जिन्नात सब ऐसे हो जाए जैसे जमीन का सबसे बड़ा बदकार शख्स, सब गलत काम करने लगे तो भी मेरी सल्तनत में कुछ कमी ना आएगी। यानी अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नेक हो या तुम गुनहगार हो। अब आगे देखिए, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले आदमी और जिन्नात सब एक मैदान में खड़े हो जाए, फिर मुझसे मांगना शुरू कर दे। एवरीबडी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, डे 1 से आखिरी तक, और ऑल जिन्नात, और सब मुझसे मांगना शुरू कर दे, और मैं हर एक को जितना मांगे दे दूं, तब भी मेरे पास जो कुछ है वो कम नहीं होगा, मगर इतना जैसे दरिया में सुई डालकर निकाल दो। सबको जो चाहिए वो दे देने के बाद भी अल्लाह के पास कोई कमी नहीं होगी। कितनी कमी होगी कि समंदर के पानी में एक सुई डुबा कर निकालो, उस पर कितने कतरे होंगे पानी के, दैट्स इट। तो ये है अल्लाह, और हम क्या है? हम क्या है? अब ये वाली हदीस देखिए, सही बुखारी की रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ये फिर से कौन सी हदीस हो गई? हदीस कुदसी। क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। इसका मतलब है कि मेरा बंदा जैसे मेरे बारे में सोचता है वो मुझे वैसे ही पाएगा। जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है, मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। हाउ स्वीट। यानी हम बस इतना कह दे या अल्लाह, तो अल्लाह ताला भी हमको याद करते अपने दिल में, कहते हाँ बोल मेरी बंदी। और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है, किसी महफिल में याद करता है जैसे हम कर रहे हैं, तो मैं भी उसको इससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। यानी हम इस मजलिस में अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त हम सबको फरिश्तों की मजलिस में याद कर रहे हैं, एक एक का नाम लेकर
96 सिस्टर्स प्रेजेंट, अल्लाह ताला ले रहे हम सबका नाम कि देखो अंजुम मेरा जिक्र कर रही है, सना कर रही है, शमीम कर रही है, सुरैया कर रही है, तबस्सुम कर रही है, एंड सो ऑन 96 टू मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं इस वक्त। ओके फिर क्या होता है, अब इसके आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मुझसे, अब अल्लाह ताला क्या फरमाते, अगर मेरा बंदा मुझसे एक बालिश्त करीब आता है, बालिश्त किसको कहते हैं, ये एक हथेली के जो हमारी 2 फिंगर्स है उसको हम लंबा कर दे, ये एक बालिश्त होता है ना, सो 1 स्पैन। तो अगर वो मुझसे एक बालिश्त 1 स्पैन करीब आता है, मेरा बंदा मुझसे करीब हुआ एक हथेली भर, तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, यानी अल्लाह ताला ज्यादा करीब आ जाते हैं। अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे 2 हाथ करीब आ जाता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह, ये है मेरा रब और हमारा रब कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम आकर देखो तो सही, तुम मुझसे मांग कर देखो तो सही, तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो देखो मैं तुमको कैसी हिदायत देता हूँ, कैसा इल्म अता करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आप लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? मुझसे आप जरूर शेयर करना अपने रिफ्लेक्शंस में कि आपने कितनी कितनी थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू की कुरान समझने के लिए, तो अल्लाह ताला ने कितने जल्दी जल्दी हमको सिखा दिया, कितना सारा सिखा दिया, कितनी हिदायत दे दी। ओके इंशाल्लाह। अब जो नहीं लेना चाहते, गफलत में पड़े हैं, तो अल्लाह ताला भी उनको गफलत में रहना देना चाहते। इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू गो दिस वे और दैट वे, अल्लाह दोनों रास्ते खोल देता है, फिर चॉइस इज आवर्स। ठीक है, चले काइंडली शेयर द स्क्रीन। अब आयत 10 पर चलते हैं। आयत 10 पे अल्लाह ताला क्या फरमाते, पनिशमेंट की बात हो गई ना कि क्या पनिशमेंट होगी। कयामत के दिन उनको बेड़ियों में जकड़ा जाएगा, और दुनिया की पनिशमेंट क्या है कि उनको हिदायत नहीं मिलेगी, आगे भी बंद दरवाजा और पीछे भी बंद दरवाजा। इसके बारे में एक हदीस नहीं, एक सीरत का वाकया मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में इतने जुल्म सितम बढ़ गए, है ना, कितने साल थे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले? 13 साल। 13 साल, 13 इयर्स। लेकिन जब जुल्म सितम इतने बढ़ गए और एक रात अबू जहल एंड कंपनी वो सब तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े हो गए कि आज जब ये घर से बाहर निकलेंगे कल सुबह, तो हम आज तो क्या करेंगे, इनका खात्मा कर देंगे, नौजुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलकर आ चुके थे, उनको सारी इंस्ट्रक्शंस और तैयारी कर लिए थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में है, और घर में उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो उनके कजिन थे, उनसे क्या कहा कि अली, मैं और अबू बकर जा रहे हैं मदीना, और तुम लोग पीछे से बाद में अहले खाना यानी सारी फीमेल्स को लेकर आना, तुम और कौन, जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जैद बिन हारिसा, और आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, कोई तुमसे पूछे तो कुछ ना कहना। अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि घर के बाहर तो ये तलवारें लेकर खड़े हैं दुश्मन, अल्लाह ताला ने बता दिया वही के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठाए और ये वाली आयत जो है ना, ये पढ़ने लगे, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और ये मिट्टी को, अपनी मुट्ठी को खोला, मिट्टी को इन लोगों के ऊपर उड़ा दिया, और लिटरली
وہ لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کی نظروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ان کے سامنے سے نکل گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے وہ لوگ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ چھوڑ کر نکل بھی گئے, غار ثور کی طرف چلے گئے. اور ان دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر تک نہیں آئے. یہ تھا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ کیسے اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کو اندھا کر دیا کہ وہ بالکل دیکھ نہیں سکتے تھے. اب کیا ہوا؟ صبح ہوئی, یہ لوگ ویٹ کر رہے, کوئی نہیں نکلا. ابھی ایک شخص وہاں سے نکلا, اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کھڑے رہ کے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں کہ محمد ابھی باہر نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شخص ہنسنے لگا, وہ کہنے لگا اے عقل کے اندھو, اے آنکھ کے اندھو, وہ تو کب کے اپنے گھر سے نکلے اور یہاں سے مکہ سے بھی وہ نکل چکے ہیں اور تم لوگ یہی انتظار کر رہے ہو. تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے وہ نکل گئے. تو وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے اور ہمیں نظر نہ آئے. تو اس شخص نے کہا ذرا اپنے سروں کو جھاڑو تو صحیح, اپنے سر پر دیکھو لٹرلی مٹی پڑی ہوئی ہے. اب جو انہوں نے اپنے سر کو جھاڑا تو واقعی مٹی خاک نکلی. اللہ اکبر. تو یہ تھا, یہ ہے اللہ کی آیات, اس کی نشانیاں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں سے بچایا اور وہ غافل تھے. اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ کیا ہم ایسی غفلت میں دیواروں کے پیچھے ہدایت کے بغیر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں ایسے اپنے سروں کو جھاڑیں گے تو مٹی نکلے گی غفلت کی, پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا جب وقت گزر جائے گا. تو we have to choose کہ ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے یا اسی غفلت میں پڑے رہنا ہے. اوکے, تو یہ واقعہ ہم سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آج بھی اس کو ہم نے ریوائز کیے الحمدللہ. کیوں ان کے آگے اور پیچھے اللہ نے دیوار کھڑی کر دی؟ یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے, اللہ نے مہر لگا دی. سورہ بقرہ کی شروعات میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ اللہ نے کیا کیا, مہر لگا دی. کہاں کہاں لگا دی, کیا آیا ہے سورہ بقرہ میں؟ بتاؤ سریہ. ان کے دلوں پر. ہاں, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر ڈال دیا ایک پردہ. وہی مانٹی آپ بولیے. ابصارهم ان کے آنکھوں پر جو ہے آپ بتائیں نا, کانوں پر, آذانہم اور قلوبہم, ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اللہ. آذانہم فی قلوبہم. اوکے, یس. تو یہ ہے اللہ کی مہر, اللہ کی سیل لگ جاتی ہے جب ہم اللہ کے دیے ہوئے اپورچونٹیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے, اس کے راستے پر نہیں چلتے. اللہ بچائے ہمیں. پھر آیت 10 پر چلنا ہے اب انشاءاللہ. وَسَوَاءٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے وہ یعنی اور, سواء اس کا مطلب ہے برابر ہے. اٹ از اکول, اٹ از سیم. کیا برابر ہے؟ علیہم, ان پر, ان کے لیے یہ برابر ہے. ان کے لیے, انہی لوگوں کے لیے جو مانتے ہی نہیں, ان کے لیے کیا برابر ہے؟ چاہے انذر, چاہے آپ خبردار کرے
अअंज़रतहुम, चाहे आप खबरदार करे उनको, अम या लम नहीं, तुंज़िरहुम या नहीं आप खबरदार करे उनको। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बराबर है उन लोगों के लिए कि चाहे ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितना ही उनको खबरदार करे, उनको वार्निंग दे, या उनको आप खबरदार ना भी करे तो भी उनके लिए बराबर ही है। वो कैसे है? चिकना घड़ा, और वो भी उल्टा पड़ा हुआ। आप उसमें कितना ही पानी डालोगे तो मटका भरेगा, या आप पानी नहीं भी डालोगे तो मटका भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि एक तो मटका उल्टा पड़ा हुआ है और वो चिकना मटका है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ऐसे लोग हैं, आप उनको कितने खबरदार करेंगे या नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इक्वल फॉर देम। और रिजल्ट क्या है? ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाने वाले, वो बात मानने वाले ही नहीं। क्यों नहीं मानने वाले? क्योंकि ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो देखना चाहते हैं, ना वो समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल गफलत में है, उनकी आंखें भी गफलत में है, उनके कान भी गफलत में है, उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं करेंगे, until you will not come with your open mind, open hearts, until they will not open their eyes and ears। अब देखिए कि अगर आपका बच्चा या कोई भी टेलीविजन देख रहा है और उसमें इतना गुम है, उसकी आंख, कान, दिल, दिमाग उस शो में पूरा एनग्रॉस्ड है, इधर आप उसको कितनी आवाजें लगा रहे हो, बेटा आ जा, बेटा खाना खा ले, बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा नमाज पढ़ ले, क्या आपको जवाब भी मिलता है? क्या वो आपकी तरफ देखते भी है पलट के? सना, मेजॉरिटी लोगों की बात कर रही हूँ मैं, आपके घर की नहीं। नहीं बाजी, सुनते ही नहीं है। है ना? क्यों? क्योंकि सारे सेंसेस उधर एनग्रॉस्ड है। बस यही अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे कि आप उनको कितना ही बताए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग अपने शिर्क में, अपने कुफ्र में, अपने बाप दादा के तरीके पर ऐसे मगन है कि उनको समझ ही नहीं आ रही है बात कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बात उनको समझ ही नहीं आएगी, वो ईमान लाने वाले ही नहीं। ये स्टेटमेंट डे 1 का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द स्टोरी है। 13 साल मक्का में आपने तबलीग की, 13 साल तक, और 13 इयर्स ये लोग नहीं माने, तो अल्लाह ने फरमाया अभी ये कभी भी मानने वाले नहीं है, बहुत हो गया इनको, कितना ही बताओ या ना बताओ, they are not going to accept। बस बात खत्म। अभी आपके लिए और मेरे लिए मॉरल क्या है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बहुत जल्दी नहीं आए, हम लोगों को भी 20-25, किसी को 30 साल लग गए, किसी को 50 साल लग गए, किसी को 60 साल लग गए, तब हम इस रास्ते पर आए हैं। अब जरा सी हमारी आंखें खुली है, जरा से कान खुले हैं, जरा सा हम हिदायत लेना शुरू किए हैं। तो हाउ मच टाइम डिड वी टेक, सना? बाजी 20-30 साल लग गए बाजी इसकी तरफ आने को। हम हाँ, भी किसी गफलत में किसी मुब्तला थे। एग्जैक्टली हम हर एक अपनी अपनी एज देख लो, और अपनी अपनी एज किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को हमें पता है कि हम कब आए। अल्लाह का शुक्र हुआ ना। पहले आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि समझो 40-50 साल तक मैं थी गफलत में, इसी गफलत में। मैं भी बाप दादा का ही दिन फॉलो कर रही थी, खीर पूरी में बिजी थी, खिचड़े बनाने में बिजी थी। अभी आई हैव टू आल्सो टेक लास्ट 5 minutes फॉर मुहर्रम। तो या अल्लाह मैं इसी गफलत में थी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि फाइनली तूने मुझे हिदायत और तौफीक दे दी, मेरी आंखें खुल गई, मेरे कान खुल गए, मेरा जूम खुल गया, मेरा कुरान खुल गया, अब बातें मेरी समझ में आ रही है। या अल्लाह अब तू अमल की भी तौफीक अता कर। और कितना एहसान है तेरा कि तूने मेरे
दिल पर मोहर नहीं लगाई, 40-50 साल तक भी तूने मोहलत देते गया ना मुझे, ये तेरा एहसान है। और मेरा ईमान, मेरा इस पर मुझे फख्र नहीं होना चाहिए, अल्लाह ये तो तेरा करम है मुझ पर कि मेरा ईमान अब क्या हो गया, पुख्ता हो रहा है, हिदायत मिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हमारा जिक्र है ना, वो इंशाल्लाह अभी आयत 11 से आ रहा है आगे। अभी पहले 10 तक के हमने क्या पढ़े, उन लोगों के बारे में जो गफलत में है। अभी इसके ऑपोजिट लोगों का जिक्र 11 से आएगा इंशाल्लाह, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा आप लोगों के साथ मुहर्रम के बारे में जिक्र करना है। क्या आप लोग जानना चाहते, सुनना चाहते? जी बाजी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तारीख कितनी है मुहर्रम की सुरैया? आज 8 तारीख है बाजी। हाँ, कल 9 और परसों 10। वेरी गुड। तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सबको। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मुहर्रम है क्या। तो ये स्क्रीन पर है। मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अपनी हर किताब में ये नाजिल किया कि एक साल में 12 महीने हैं, और इन 12 महीनों में 4 महीने कौन से महीने हैं? 4 महीने कौन से महीने? हुर्मत वाले बाजी। हुर्मत वाले। और उन 4 हुर्मत वालों महीने में से एक है मुहर्रम, और मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ, पहला महीना है इस्लामिक ईयर का। ओके, अभी क्या है ये पहले महीने में हमें क्या करना है, क्या हुआ था, इसका कोई सिग्निफिकेंस अगर पूछे हमसे, तो हमको तो इतना ही पता था कि ये जो महीना है, इस महीने में 10 तारीख को इमाम, कौन से इमाम? हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की क्या हुई थी? शहादत हुई थी बाजी। शहादत हुई थी, बराबर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में, उनकी जिंदगी में ये हुआ था क्या? नहीं बाजी। हाँ, उनके ऑलमोस्ट 30-40 साल बाद समथिंग अराउंड ये वाकया हुआ है करबला का। और ऑफ कोर्स ये शहादत बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मुहर्रम का रोजा और मुहर्रम के 10 तारीख की फजीलत सिर्फ ये नहीं है। देखिए, शहादत तो बहुत सारे सहाबा इकराम की हुई और उसका अजर उनको मिल जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है? सही बुखारी की रिवायत है, स्क्रीन पर है। फरमाया, रमजान के रोजे फर्ज हो जाने के बाद अब जिसका जी चाहे वो आशुरा का रोजा रखे, और जिसका जी ना चाहे वो ना रखे। तो ये फर्ज रोजा नहीं है, ये नफली रोजे हैं जो आशुरा के हैं, मुहर्रम के रोजे। लेकिन पसंदीदा क्यों है? क्योंकि मुहर्रम का महीने के बारे में क्या आता है कि ये अल्लाह का महीना है। किसका महीना है? मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। अब देखिए ये हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है। 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोजा रखा आशुरे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी 10 मुहर्रम का, और हुक्म किया कि इस दिन रोजे रखने का, तो लोगों ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन तो ऐसा है कि इसकी ताजीम करते हैं यहूद और नसारा भी, यानी यहूद और नसारा भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। इस दिन की उनके पास अहमियत है। क्यों है? क्योंकि इसी दिन 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर पार कर चुके थे, समंदर फाड़ के, और अल्लाह ने इसी दिन फिरौन को समंदर में गर्क किया था। तो फिरौन से निजात मिली थी इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को। इसीलिए ये लोग 10 मुहर्रम
کا روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم صرف 10 نہیں 9 کا بھی روزہ رکھیں گے, یعنی 9 اور 10 دونوں روزے رکھیں گے. آخر اگلا سال نہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے. یعنی یہ کیا ہو گیا, 9 ہجری کی بات ہے نا. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ محرم کا روزہ, محرم کی امپورٹنس وہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے سے اس دن کی حرمت ہے, اس دن کی عظمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا اگر اگلے سال زندہ رہے تو 9 اور 10 دونوں رکھیں گے. تو پھر ہمیں بھی اسی سنت کو فالو کرنا ہے. اس کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کتنے 1 سال کے باجی گناہ کو یس, معاف. الحمدللہ. ابھی ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں کیا تھا, عرفات کے روزے کے بارے میں کہ 1 سال پہلے اور ایک آنے والے, اور اس میں کیا ہے 1 سال کے روزے, 1 سال کے گناہ معاف. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دے رہا ہے, لیکن یہ روزہ فرض نہیں ہے, نفلی ہے. اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے اسکرین پر, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best fast after Ramadan is in the month of Allah, that is محرم. یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے مہینے کے روزوں کی ہے. تو اللہ سے دعا کرے, توفیق مانگے اور انشاءاللہ یہ روزہ رکھے, اور اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل من